Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our 23rd lecture. In the previous lecture, we see about sequential logic. What is sequential logic? What are the types? What are asynchronous circuits and what are the synchronous sequential circuits? Then we came on to the SR latch. We see that we can make an SR latch in two configuration, one from NAND gate and other from NOR gate. We had seen both latch configuration with their truth table and how they operate. Today we will discuss about the gated SR latch. The gated SR latch has an enable input which has to be activated to operate the latch. In the gated SR latch, the S and R inputs are applied at the input of the NAND gates 1 and 2. That NAND gate 1 and 2 will be shown in the next figure. When the enable input is set to active high. If enable input is disabled by setting it to logic low, the output of NAND gate 3 and 4 remains at logic 1, whatever the state of S and R inputs. Thus logic 1 applied at the inputs of NAND gate 1 and 2 keeps the Q and Q complement outputs to the previous states. Here is the logic diagram. This is gate 1, gate 2, gate 3 and gate 4. So 1 and 2. Okay, let me use a pen to number them. 1, 2, 3 and 4. So this is the S and R input. It comes from another NAND gate whose second input is connected with the enable and first input S and R. So if the enable input is disabled by setting it to logic low, the output of NAND gate 3 and 4 remains to logic 1, whatever the SR inputs. Okay, if enable is set to 1. If enable is set to 0, this output gate will be 1 and 1. Whatever the state it will, if we have 1 indeterminate state, we cannot have a proper output until and unless we make it to 1. Here, if the enable input is disabled by getting the output 3 and 4. Okay, and in S and R are applied at the inputs of NAND gates 1 and 2. Here we can see that this S and R are, if this enable will enable them, then we can get an S and R input. Otherwise, if it is set to logic 0, S and R values doesn't change the state of the latch. Here from the truth table you can see that when enable is set to 1, only then S and R inputs will change the state. Otherwise, if enable is set to 0, there will be no change in the state. It doesn't matter what the value of S and R is. If enable is 0, the latch will not change its state. Okay, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि सीक्वेंशियल लॉजिक क्या होती है. सीक्वेंशियल लॉजिक की बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था. इन बेसिक्स में हमने देखा था कि दो तरह की सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. उसके बाद हमने लैच पे आए थे. हमने देखा कि हम एसआर लैच, सबसे पहला लैच जो हम स्टडी कर रहे हैं एसआर लैच है. ये एसआर लैच हम दो कॉन्फ़िगरेशंस में बना सकते हैं, एक नैंड के साथ और एक नॉर के साथ. हमने नैंड और नॉर में देखा कि सिर्फ तकरीबन कनेक्शन सेम है, सिर्फ
एस और आर की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। नैंड में वो एस आर है तो नॉर में वो आर एस हो जाएगा, और अगर नैंड में वो आर एस है तो एस में वो नॉर में वो एस आर हो जाएगा। ये टॉगल कर जाती हैं वैल्यूज। आज हम देखेंगे गेटेड एस आर लैच। गेटेड एस आर लैच एक ऐसा लैच है कि जिससे पहले हम गेट्स लगा रहे हैं और वो गेट्स एनेबल इनपुट के लिए हैं। गेटेड एस आर लैच में 3 इनपुट्स होती हैं, एक एस आर और तीसरी एनेबल। जब तक हम एनेबल इनपुट अलाउ नहीं करेगी तब तक आपके पास आउटपुट पे वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, एस एंड आर की वैल्यूज आप जो मर्जी रख लो वो ऑफ ही रहेगा। ये इसी तरह का कि ये लाइट का ये आपका मेन स्विच है। ठीक है, जैसा घर में आपकी लाइट होती है, ये आपका मेन स्विच है। अगर मेन स्विच आप ऑफ कर दें तो चाहे आप घर का जो मर्जी बटन ऑन ऑफ करते रहें, आपके पास लाइट ऑन नहीं होगी जब तक कि आप मेन स्विच को ऑन नहीं करोगे। सो दिस एक्ट एज अ मेन स्विच। ठीक है, और इसको हम जब 0 रखेंगे, ठीक है, ऑफ रखेंगे तो हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एनेबल को हमने यहाँ 1 रख दी है। ठीक है, ये नैंड गेट है, ये ध्यान में रखिएगा। नैंड गेट में जब एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट वही होगी जो आपके पास एस होगी। ठीक है, जब ये 1 एस डॉट 1 का बार आपके पास एस ही आएगा। अब अगर मैं इस एस और आर को देखूं तो जब ये 1 है यहाँ पे मुझे एस मिलेगा, ये 1 है यहाँ पे मुझे आर मिलेगा, और बाकी आगे वही टेबल है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 1 इनवैलिड स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स पे क्यू और क्यू बार दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है, इसलिए इनको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। ये अलाउड इनवैलिड स्टेट्स होती हैं, ये अलाउड नहीं होती। ठीक है, जब सेट 1 है तो क्यू 1 है, जब सेट 0 है तो क्यू 0 है। ठीक है, सेट जो है वो आपके लैच को एक्टिव हाई या एक्टिव लो पे सेट कर। ठीक है, बाकी इसी तरह बाकी वही फंक्शन है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो आज हम गेटेड डी लैच या जिसको आप ट्रांसपेरेंट लैच भी कहते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो डी लैच एक ऐसा लैच है जो एस आर लैच से ही बनता है। अब डी लैच में हम एस और आर इनपुट को एक दूसरे से नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इस एस और आर गेट को नॉट से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक ही इनपुट रह जाती है। ठीक, तो डी लैच एक ऐसा लैच है जिसकी एक ही इनपुट है। इसकी इनपुट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ एस एंड आर। और जो गेटेड लैच है इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट्स होंगी इनपुट पे, या वो 0 होगी या 1 होगी। तो जो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन था एस आर लैच का, वो सिर्फ 2 इनपुट्स कॉम्बिनेशन के ऊपर रह गया। ठीक है, और जो डी लैच की आउटपुट है वो वही होगी जो आप इनपुट पे दोगे। अगर डी 0 है तो क्यू 0 होगा, डी 1 है तो क्यू 1 है, और क्यू बार इसी का ही कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अगर मैं इसकी फिगर पे बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एस और आर उसी तरह ट्रांसपेरेंट लैच है एनेबल इनपुट पे। एनेबल इनपुट का हम बता चुके हैं, जब तक ये 1 नहीं होगा आगे सर्किट परफॉर्म नहीं करेगा। ओके जी, अगर एनेबल 1 है, ठीक है, डी पे मैंने 1 सेट किया। ठीक है, डी पे मैं 1 सेट कर रहा हूं तो यहां पे मुझे 0 मिलेगा, यहां पे मुझे 1 1 मिलेगा। 1 1 का नैंड 0 आएगा। ठीक है, 1 0 का नैंड 1 आएगा। इनिशियली क्यू जब ऑफ स्टेट पे है तो क्यू इनिशियली 0 पे होगा और क्यू बार 1 पे होगा। जब ऑफ स्टेट में जाहिर बात है क्यू अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 होगा। अब इधर आप चेक करें, ये 0 1 बन जाएगा और ये 1 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अब 0 1 यहां पे आपको 1 दे देगा, और जब ये यहाँ पे आपके पास स्टेट हो जाएगी 1 1 चेंज हो रहा है 1 1, यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके पास ये इनिशियल स्टेट्स खत्म हो रही हैं। अब जो स्टेट्स है वो क्यू है और ये क्यू बार है। तो जो डी पे हमने 1 दिया तो क्यू पे हमें 1 मिला है, और डी पे अगर मैं 0 तो दे के देखता हूँ, 0 दे के देखता हूँ, एनेबल 1 है, 0 1 का नैंड 1 होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने 0 1 का नैंड आपको देगा 1, और यहाँ पे भी
1 1 का NAND आपको देगा 0। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक, तो अब जब यहाँ पे 1 है, इनिशियल स्टेट यहाँ 0 है, 1 0 का NAND आपको 1 बल्कि यहाँ पे ये 1 होगा। एक मिनट में इसको क्लियर करके फिर हम दोबारा से इसको करते हैं। ठीक है, लैच अभी सेट स्टेट पे है। सेट स्टेट पे है तो Q 1 है, Q बार 0 है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। अब जब मैं यहाँ पे 0 अप्लाई करता हूँ, D पे 0 देता हूँ, तो इनेबल 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 1 1 1 का NAND आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और 0 1 0 1 का NAND आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, अब 1 0 का NAND 1 0 का NAND आपको 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, 1.1 0 और फिर 0 0 आ रहा है, 0 1 का एंड भी आपको 1 मिलता है। तो ये तो 1 स्टेट में आ रहा है, जबकि यहाँ पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे तो 1 ठीक है, क्यों नहीं सॉरी, यहाँ पे 0 आना चाहिए। 0.1 का एंड 1 आएगा तो ये 1 होगा, तो 1.1 का NAND आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम अगर D 0 देंगे तो आउटपुट पे 0 आएगा, D को जब हम 1 देंगे तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये फॉलो होता है। ठीक है, जब हमने SR लैच में भी ये देखा था, जब सेट आपके पास 1 है, ठीक है, इस केस में जब सेट 1 है तो लॉजिक 1 होगी, जब सेट 0 होगा तो लॉजिक 0 होगा। अगर इस केस में उसके साथ हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम इसको सेट रीसेट लैच के साथ कंपेयर करें तो ये मेरे पास एक तरह से S है, ये R है। S जब 1 होगा तो Q आपके पास 1 होगा, S जब 0 होगा तो Q आपके पास 0 होगा, और Q बार आपके पास इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो यही हम लोगों को D पे मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हमने D से कनेक्ट कर दिया। तो D लैच एक ऐसा लैच है जो आपको आउटपुट पे वही देगा जो इनपुट पे हुआ है। Q जो है वो D को फॉलो कर रहा है D लैच के अंदर। ये D लैच का और ऐसा लैच के आपको वो है, हमारे पास ग्राफिक सिंबल है। ठीक है, ये नॉर के लिए है। ठीक है, विथ नॉर ये सॉरी हाँ जी, ये नॉर के लिए, ये नैंड के लिए है, और ये आपके पास डी लैच आ रहा है। D latch receives that designation from its ability to hold data in its internal storage. D latch को हम जो नाम इसका मिला है D latch का, ये है कि ये डेटा को होल्ड करता है, अपने इंटरनल डेटा को होल्ड कर देता है अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर। कि जो डेटा आप इसको इनपुट पे देंगे वो नेक्स्ट ट्रांजिशन तक उसी में ही होल्ड रहेगा। ठीक है जी, it is suited for use of temporary storage for binary information between a unit and its environment. टेम्पररी इंफॉर्मेशन जब आपको बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो हम D latch को यूज कर रहे होते हैं। द आउटपुट फॉलोज चेंज द इनपुट एज लॉन्ग एज एनेबल इज इनपुट इज असर्टेड। जब तक एनेबल इनपुट है 1 रहेगी, जो आउटपुट ऑफ D latch है वो इनपुट को ही फॉलो करती रहेगी। और इसी रीजन की वजह से हम इसको ट्रांसपेरेंट लैच भी कहते हैं। D latch को हम ट्रांसपेरेंट लैच भी कहते हैं। ठीक है, when the enable input signal is deasserted, the binary information that we present the data input at the same time transition occurred is retained, stored at Q output until enable input is inserted again. ठीक है, asserted again। जब तक हम ऊपर अगर मैं देखूं,
इनेबल इनपुट जब तक 0 रहेगी, ठीक है, तब तक आपके पास इसके जो अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये है कि जब अगर हम इनेबल को 0 कर दें, डी को हम 1 0 जो भी करते रहें, क्यू और क्यू बार पे वही स्टेट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक कि अगर हमने इसकी स्टेट को चेंज करना है तो हमने इनेबल को 1 करेंगे तो आपके पास आउटपुट पे चेंज आएगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास लैचेस का टॉपिक खत्म होता है और हम लोग आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर। ठीक है, द स्टेट ऑफ लैच और फ्लिप फ्लॉप इज स्विच बाय चेंज इन कंट्रोल इनपुट। दिस चेंज इज कॉल्ड अ ट्रिगर। लैच या फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट चेंज होती है, ठीक है, वो इनपुट के ऊपर चेंज करने से आउटपुट के ऊपर आपके पास स्टेट चेंज हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रिगर का नाम देते हैं कि आपकी आउटपुट जो आपकी करंट स्टेट है वो ट्रिगर हुई है, प्रीवियस स्टेट ने ट्रिगर किया है इनपुट को देखते हुए। आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो न्यू स्टेट आ रही है वो ट्रिगर होके आ रही है। इन सिंक्रोनस सिस्टम द आउटपुट ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट चेंजेस व्हेन अ क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ इनेबल सिग्नल। जो सिंक्रोनस सर्किट्स हैं जो जिन पे हम बात कर रहे हैं, इन पे ये क्लॉक पे चल रहे होते हैं, ये इनेबल इनपुट पे नहीं चलते। हमने लैच के अंदर देखा है कि हम लोग लैच में इनेबल के लेवल को चेंज करते हैं तो आपके पास चेंजेस आती हैं, इनपुट रीड होती है। अगर इनेबल 0 रहेगी, इनेबल ऑफ रहेगी तो आप जो मर्जी कर लो, आपके पास नहीं चेंज आ रहा होता। ठीक है, जबकि सिंक्रोनस जो सर्किट्स होते हैं इनके अंदर जो आपकी इनेबल इनपुट होती है ये क्लॉक से कनेक्टेड होती है। वो क्लॉक के ऊपर कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो क्लॉक की पल्सेस आती हैं ये उनके ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे काम करना है। When latches are used for storage element, a serious difficulty arises. The state transition of the latch start as soon as the clock pulse changes to logic level 1 and the new state of the latch appears at the output while the pulse is still active. अब जब हम लोग लैच को यूज कर रहे थे स्टोरेज एलिमेंट, हमने इसकी इनेबल को क्लॉक से कनेक्ट किया तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये थी, जैसे ही क्लॉक के ऊपर लेवल 1 आता है, ठीक है, लेवल 1 आता है तो आपके पास आउटपुट के ऊपर आपके पास जो है वो स्टेट एक्टिव हो जाती है। अभी यानी पल्स आपकी लेवल 0 जब तक नहीं होती आपके पास आउटपुट स्टेट तब तक रहेगी। जैसे ही क्लॉक की पल्स लेवल 0 होगी आउटपुट स्टेट उसकी रीसेट कर देगी। ठीक है, रीसेट तो नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इस चीज पे, ठीक है, जैसे ही लेवल 1 आएगा आपके पास आउटपुट रिस्पॉन्ड करेगा, लेवल 0 होगा आपके पास स्टेट होल्ड आएगी। लेवल 1 आएगा, जब तक ये लेवल 1 रहेगा तब तक आपके पास आउटपुट होती रहेगी। इनकेस अगर ये लेवल आप पहले डाउन कर दो तो फिर क्या होगा, आपके पास आउटपुट पे चेंज अभी कंप्लीट नहीं हो रहा होगा और आपके पास इनपुट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर आए। फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे as to make them operate properly when they are part of a sequential circuit that employs a common clock. The key to the proper operation of flip-flop is to trigger it only during a signal transition. जो प्रॉपर ऑपरेशन है फ्लिप फ्लॉप का, फ्लिप फ्लॉप सिर्फ तभी ट्रिगर करेगा जब आपके पास ट्रांजिशन आएगी। ट्रांजिशन ये जिस लम्हे में क्लॉक 0 से 1 होगा आपके पास फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा। अच्छा, तो अब सिर्फ ये क्लॉक ट्रांजिशन के ऊपर करेगा। क्लॉक पल्स गोज थ्रू 2 ट्रांजिशंस फ्रॉम 0 to 1 एंड रिटर्न फ्रॉम 1 to 0। हमारे पास क्लॉक के अंदर 2 तरह की ट्रांजिशन होती है, एक वो 0 से 1 पे जाती है, ठीक है, दूसरा वो 1 से 0 के ऊपर आती है। द पॉजिटिव ट्रांजिशन इज डिफाइंड एज पॉजिटिव एज एंड द नेगेटिव ट्रांजिशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव एज। तो अगर हम क्लॉक के ऊपर देखें, अब ये पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज रिस्पॉन्स है और ये नेगेटिव एज रिस्पॉन्स है नीचे।
कि ये नेगेटिव जब क्लॉक 1 से 0 हो रही है, ठीक है, 0 1 और फिर 1 आ रही है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहा, ये एज के ऊपर काम कर रहा है। जब भी 0 से 1 होगा आपके पास ट्रिगर करेगा और आपके पास नई स्टेट आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आपके पास ये टाइम, इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर वो इनपुट को रीड करके आपके पास आउटपुट पे ले आएगा। तो जो डिफिकल्टी यहां पे आपके पास आ रही थी, ठीक है, यहां पे binary information that was present at the data input at the same time the transition occur is retained, stored at Q output until the enable input is asserted again। तो जो यहाँ पे जब तक ये enable आपके पास enable है तब तक ही आप उसको रीड कर सकते हो। जब ये enable डिसेबल हुई है तो वो होल्ड कर देती है, जबकि इस होल्ड के ऊपर अगर इनपुट पे कभी कोई चेंज आता है तो वो आपके पास आउटपुट के ऊपर नहीं आ रहा होता। जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, इस तरह की थी। तो इस प्रॉब्लम को हमने चेंज करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर आए। फ्लिप फ्लॉप्स एज ट्रिगरिंग डिवाइस है। जब पॉजिटिव एज, एक फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव एज आ रहा है तो इस पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर करेगा। जब तक नेक्स्ट एज नहीं आता तब तक आप जैसे ही जो आप इनपुट के ऊपर चेंज करोगे वो आउटपुट के ऊपर परफॉर्म होता रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट एज आएगा नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट एज आएगा नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। तो होल्ड कहीं पे भी नहीं होगा डेटा, या आपके पास एक कॉन्स्टेंटली एक डेटा होल्ड नहीं होगा। आपके पास नई जो स्टेट आ रही है वो आपके पास एज से ट्रिगर होके आ रही है। इसी तरह नेगेटिव एज है कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के ऊपर ही है कि जब नेगेटिव एज अकर होगा सिर्फ उस वक्त ट्रिगर होगा, उससे उस वक्त आपके पास ट्रिगर होगा, न्यू इनपुट्स रीड होंगी, ठीक है, न्यू इनपुट्स रीड होंगी और वो तब तक रीड होती रहेंगी, आपके पास फ्लिप फ्लॉप काम करता रहेगा जब तक कि आपके पास नेक्स्ट एज नहीं आ जाता। तो हमने हमारे पास जो कोर्स के अंदर है हम 3 तरह के फ्लिप फ्लॉप्स को ऊपर देखेंगे, ठीक है। एक SR सेट रीसेट एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, एक D एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है और एक JK एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। हर फ्लिप फ्लॉप के 2 वेरिएशंस हैं कि वो या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो सकता है। ये 2 वर्जन्स हैं, ठीक है, हर फ्लिप फ्लॉप के कि या तो वो पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर करेगा या वो नेगेटिव एज के ऊपर ट्रिगर करेगा, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर में ट्रिगरिंग तब होगी जब आपके पास क्लॉक की ट्रांजिशन लो टू हाई होगी, और नेगेटिव एज ट्रिगर में ट्रांजिशन कब होगी जब क्लॉक की ट्रांजिशन हाई टू लो होगी। फ्लिप फ्लॉप के यूजेस बेशुमार है। मेमोरी सर्किट्स में यूज हो रहा है, लॉजिक कंट्रोल डिवाइसेस में होता है, काउंटर डिवाइसेस में होता है, रजिस्टर डिवाइसेस में होता है। ये रजिस्टर वो रजिस्टर्स की बात हो रही है जो आपके रैम ये प्रोसेसर के अंदर कैशे बना रहे होते हैं, या आपके प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं जिसमें एक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है, मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, वो हैं। इसी तरह काउंटर डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो काउंट कर रही होती हैं, जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह का सीक्वेंस आपके पास बार बार आ रहा है, वो काउंटर डिवाइसेस हैं, उनमें भी हम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं। इसी तरह लॉजिक कंट्रोल डिवाइसेस है, ठीक है, लॉजिक कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर भी हम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज कर सकते हैं। और मेमोरी सर्किट्स में तो ऑब्वियसली ये स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज एलिमेंट्स है तो मेमोरी सर्किट्स में भी ये यूज होते हैं। तो जो हम स्टार्ट करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप से, एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप। इसका लॉजिक सिंबल आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के लिए आप देख रहे हैं क्लॉक के जो आपके पास इसमें एनेबल नहीं है, इसमें क्लॉक आ रही है, इसके पास आपके पास इस तरह का 0 सर्कल एक इंसर्ट हुआ है क्लॉक पे, जो ये शो कर रहा है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। आउटपुट इसी तरह क्यू बार है, इनपुट S और R है और एक क्लॉक इनपुट है। ये SR ट्रिगर की आपको ट्रुथ टेबल या फंक्शन टेबल है, नीचे उनके टाइमिंग डायग्राम है। जब क्लॉक 0 है तो कोई शुरू में इनिशियली जब क्लॉक 0 है इनपुट जो भी होगा आउटपुट पे वही
आउटपुट होगी जो जिस स्टेट पे वो है। जैसे ही क्लॉक के ऊपर 1 आया कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेवल पे नहीं फर्क पड़ रहा। अब जब एज आया, पॉजिटिव एज आया, तो 0 0 के ऊपर क्यू टी आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एज आया, 0 1 हुआ, 0 1 के ऊपर आपके पास 0 0 के ऊपर होल्ड हो रहा है डेटा, ठीक है। 0 1 के ऊपर आपके पास Q 0 है, और जब 1 S 1 है तो आपके पास 1 आएगा, और 1 1 कंडीशन इनवैलिड होती है। SR लैच में हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। हमने लैच के साथ अब एज ट्रिगरिंग पे काम स्टार्ट कर दिया, बाकी चीजें आपके पास वही हैं, ठीक है। जैसे ही मेरे पास क्लॉक का पॉजिटिव एज आया, यहाँ पे S 1 है, ये 0 है, ठीक है। जब तक ये 1 और 0 है तब तक जो स्टेट रहेगी वो नेक्स्ट रीसेट सेट, तो ये आउटपुट आपके पास 1 होगी, और जब तक नेक्स्ट एज नहीं आता तब तक ये आपके पास वही स्टेट रहेगी। अब जब नेक्स्ट एज आया, ठीक है, अब इसमें आप देखें क्लॉक ट्रांजिशन अभी पूरी नहीं हुई, मेरे पास रीसेट नीचे आ गया, मगर मेरे पास आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये लेवल ट्रिगर नहीं है, ये एज ट्रिगर्ड है। अगर ये लेवल ट्रिगर्ड होता तो इसके ऊपर आपके पास आउटपुट पे चेंज यहाँ की जगह यहाँ से आनी शुरू हो जाती, जो हमारे पास जो जितनी देर तक हमें रिस्पॉन्स चाहिए था वो उससे पहले ही डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है। अब ये देखें, जब नेक्स्ट एज आया, रीड हुई, सेट 0 है, आपके पास आउटपुट पे 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एज आया, सेट 1 है, तो आपके पास आउटपुट पे 1 आ रहा है। इसके बीच में सेट 1 हुआ है, रीसेट हुआ है, जब तक उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जब तक नेक्स्ट एज नहीं आया आपके पास ट्रिगरिंग नहीं हुई है, ठीक है। ट्रिगरिंग क्लियर हो रही है कि ट्रिगरिंग क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट में आने। जब तक नेक्स्ट एज नहीं आएगा तब तक आप नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जाओगे। इसी तरह ये आपके पास नेगेटिव एज ट्रिगर पे जब नेगेटिव एज जब तक नहीं आएगा तब तक आपके पास ट्रांजिशन अकर नहीं होगी। इसी तरह एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप डेटा को होल्ड करता है, जब तक नेक्स्ट एज नहीं आएगा आपके पास डेटा होल्ड रहेगा। इसका सिंबल, लॉजिक सिंबल ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, क्लॉक से हमें पता चल रहा है। अगर हम आगे देखें, ये मेरे पास ट्रुथ टेबल है, 0 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक पॉजिटिव एज नहीं आ रहा तब तक आपके पास क्यू की स्टेट वही रहेगी, ठीक है, जो उसकी प्रीवियस स्टेट थी। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आया, जो डी के ऊपर है वही आपको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 1 आया तो आपको 1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। अगर टाइमिंग डायग्राम से देखें, ये देख रहे हैं, जो डी के ऊपर है जब तक नेक्स्ट एज नहीं आता तब तक वो 1 ही रहेगा। अब ये नेक्स्ट एज से पहले पहले 0 हुआ है, मगर आउटपुट पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा जब तक कि नेक्स्ट एज नहीं आता। जब नेक्स्ट एज आया, डेटा रीड हुआ, 0 आया। अब जब तक नेक्स्ट एज नहीं आता ये 0 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट एज आया तो यहाँ पे ये 1 है तो आउटपुट के ऊपर 1 है। फिर नेक्स्ट एज आया, यहाँ पे ये 0 है तो आउटपुट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट एज, तो ये एज के ऊपर आपकी वैल्यूज हो रही हैं। इसी तरह नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में जब नेगेटिव एज अकर होगा तभी आपके पास ट्रिगरिंग हो रही है। मास्टर स्लेव भी हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स पे बात करेंगे कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। मगर मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में एक पॉजिटिव एज के ऊपर आपके पास एक का रिस्पॉन्स आएगा और नेक्स्ट पॉजिटिव एज के ऊपर आपके पास नेक्स्ट जो सेकंड वाला है वो उसका रिस्पॉन्स आउटपुट पे आएगा, ठीक है। जिस तरह ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मेरे पास एक पॉजिटिव एज आया है। जब ये पॉजिटिव एज आया तो ये उसको नेगेटिव एज मिल रहा होगा। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये नेगेटिव एज पे तो ट्रिगर नहीं करेगा, तो यहां पे आपको आउटपुट कुछ नहीं मिल रही होगी, ठीक है। यहां पे आपको आउटपुट मिल रही होगी, ठीक। जब इस साइकिल पे आपके पास ये डी के ऊपर जो भी डेटा होगा वो वाई के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जब मेरे पास यहां पे नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव एज आएगा, इसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी मगर इसकी आउटपुट
नेगेटिव एज का मतलब ये होगा कि इसकी आउटपुट 1 हो रही है, इसकी आउटपुट आपके पास तब आ जाएगी। यानी पॉजिटिव एज पे ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, नेगेटिव एज पे आपके पास ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डी लैच की मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की आपके पास आ रही होती है। इस पे इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। यहाँ पे जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में भी हम ये लैचेस को कनेक्ट कर सकते हैं, दो एक जैसे लैचेस को। ये डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की आपके पास आ रही है लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे तो आपके पास एस और आर को हमने कनेक्ट किया है अगेन नैंड गेट से। नैंड गेट पे ही हम क्लॉक दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास जो आ रही है आउटपुट, इसकी आउटपुट भी इसी क्लॉक वाले को जा रही है, तब आपके पास ये डी इनपुट चल रही है, ठीक है। और अगेन ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ भी ये जो इसकी आउटपुट है ये इस पे इनपुट जा रही है। तो ये लॉजिक डायग्राम है डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की। इनको हम नॉर्मली लॉजिक डायग्राम्स इनकी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम इस ब्लॉक को यूज करते हैं किसी सीक्वेंशियल सर्किट के डिजाइन के लिए। इसके अंदर की जो लॉजिक डायग्राम है आपको दिखाने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। द टाइमिंग रिस्पॉन्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप to input data to the clock must be taken into consideration when one using an edge triggered flip flop. There is a minimum time called the setup time during which the D input must be maintained at constant value prior to occurrence of the clock transition. Similarly, there is a minimum time called the hold time during which the D input must not change after the application of the positive transition of the clock. The propagation delay time of the flip-flop defines the interval between triggering edge and stabilization of the output to new state. These and the other parameters are specified in manufacturer's data book for specific logic families. अच्छा, जो important parameters हैं वो ये हैं कि क्लॉक की फ्रीक्वेंसी हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास 3-4 पैरामीटर्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल भी हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट आपको बताने के लिए कि ये पैरामीटर्स भी हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर दो, आपको सेटअप टाइम, होल्ड टाइम और प्रोपिगेशन डिले, इन तीनों चीज़ों को देखना पड़ता है। इनको देखते हुए आप क्लॉक का टाइम सेट करते हैं। क्लॉक की फ्रीक्वेंसी इतनी अगर आप हाई कर देते हो, ठीक है, कि आपके पास ट्रांजिशन जो उसकी फ्लिप फ्लॉप की प्रोपिगेशन डिले है उससे कम है आपके पास क्लॉक, तो आपके पास एक एज और दूसरा एज इतनी जल्दी आ जाएगा कि इसकी प्रोपिगेशन डिले से अगर हमने कम इसका बीच में टाइम दिया हुआ है तो आपके पास फ्लिप फ्लॉप प्रॉपर स्टेट में जाने से पहले ही दूसरी स्टेट पे ट्रिगर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि इसकी स्टेट्स क्या आ रही हैं। इस तरह की अकरेंसेस को देखने के लिए हम ये प्रोपिगेशन डिले देखते हैं। होल्ड टाइम वो टाइम है जिस टाइम के अंदर जो डी इनपुट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। होल्ड टाइम मींस इस नेक्स्ट आउटपुट जनरेट जो इस इनपुट के लिए जब तक आउटपुट नहीं आ जाती है, जो प्रोपिगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप की, उस डिले के बाद आपके पास चेंज हो जाती है, तो इस टाइम को आप होल्ड टाइम कहते हो। इसी तरह सेटअप टाइम होता है। सेटअप टाइम वो टाइम है कि नेक्स्ट क्लॉक अकरेंस से पहले पहले आपके पास डी जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहिए। स्टेबल स्टेट ये है कि वो जो डी पे अगर जीरो है तब क्यू पे तब तक जीरो आना चाहिए, जो ये सारा प्रोसेस है वो सारा हो जाना चाहिए। ओके, अगर आप इसको देखें कि हर गेट की एक प्रोपिगेशन डिले है, उस डिले के बाद यहाँ पे इसका जिस तरह 1 मिली सेकेंड की इसकी डिले है, ठीक है। अब 1 मिली सेकेंड के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे पैरेलल में, उसके बाद 1 मिली सेकेंड के आपके पास इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा। मींस टोटल 2 मिली सेकेंड का आपको इससे ज्यादा की आपको डिले चाहिए। अब प्रोपिगेशन डिले हर गेट इसकी 2 मिली सेकेंड है, ठीक है। इन 2 मिली सेकेंड की डिले से फिर इनपुट और पे भी हम देखते हैं ये हमारे पास। उसके बाद हमें पता चलता है कि सेटअप टाइम क्या और
होल टाइम वो जिसके लिए आपके पास आउटपुट स्टेबल रहेगी। यानी एक ट्रिगर हो के जब एक ट्रिगरिंग हो रही है वो सेटअप टाइम है, और जो होल टाइम है आपके पास उसके बाद यानी उस होल टाइम के अंदर आपके पास इनपुट को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर होल टाइम के अंदर इनपुट चेंज होती है तो आपके पास एक अनस्टेबल स्टेट में फ्लिप फ्लॉप चला जाएगा। बहरहाल ये अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल में बात डिस्कशन हम करेंगे। तो आज जस्ट इस चीज को देखें कि हम लोग लैच के हम लोगों ने पहले सिंपल लैच देखे, आज हमने गेटेड लैच देखा कि एनेबल इनपुट अगर हम लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ता है लैच पे। फिर हमने कहा कि अगर हम एनेबल इनपुट लगा दें तो भी हमारे पास जो ट्रांजिशन है, ट्रिगरिंग हो रही है, वो लेवल सिग्नल लेवल के ऊपर हो रही है, वो क्लॉक के ऊपर नहीं हो रही है। तो हमने इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर आए। फ्लिप फ्लॉप से हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो एज ट्रिगरिंग डिवाइस हैं। एज दो तरह के हैं, पॉजिटिव एज है और नेगेटिव एज है। जब 1 से 0 से 1 होगा तो आपके पास पॉजिटिव एज ऑकर होगा क्लॉक का। जब क्लॉक 1 से 0 होगी तो क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे ये मतलब है कि पॉजिटिव एज जब आएगा तभी आपके पास आउटपुट की स्टेट चेंज होगी, वरना स्टेट आपके पास वही होल्ड स्टेट रहेगी। ठीक है, जब एज अकर हुआ है, इनपुट रीड हुई है, अगर नेक्स्ट एज से पहले पहले आपके पास इनपुट डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आपके पास वो रीड रहेंगी। जब तक नेक्स्ट एज नहीं आएगा तब तक इनपुट्स रीड नहीं होंगी। इस चीज से हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन आती है सर्किट के अंदर। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग एज ट्रिगरिंग पे आ जाते हैं, और बाकी जो मास्टर स्लेव और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लिप फ्लॉप के, इन पे हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह वो हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।